السلام علیکم. آج پاکستان کی آواز کے ساتھ میں ہوں کامران شیخ. ناظرین, آج پاکستان کی آواز میں بات ہوگی پاکستان میں اسکاؤٹنگ کے حوالے سے. اسکاؤٹنگ ہے کیا, اسکاؤٹس کرتے کیا ہیں, ان کی خدمات کیا ہیں. اس وقت میں موجود ہوں ابوالحسن اصفہانی روڈ گلشن اقبال اسکاؤٹ ٹریننگ سینٹر میں, جہاں پر 8ویں سندھ اسکاؤٹس کیمپوری کی تقریب جاری ہیں. اس کیمپوری کا آغاز 21 دسمبر کو ہوا, جو 26 دسمبر تک جاری رہے گی. اسکاؤٹس کیا کرتے ہیں, ان کی تاریخ کیا ہے, اس کیمپوری میں ان کی کیا کیا خدمات اور کون سے اعزازی بیجز کروائے جائیں گے, کون کون سے مہمان یہاں پر شریک ہوں گے, یہ سب کچھ آپ کو بتاتے ہیں. تو آئیے آپ کو لیے چلتے ہیں سندھ اسکاؤٹس کی 8ویں کیمپوری. اسکاؤٹس پلیس لیٹس گو. جی ناظرین, بات ہو رہی تھی سندھ اسکاؤٹس کی 8ویں کیمپوری کی. اس وقت آپ ہماری اسکرین پر وہ مناظر دیکھ سکتے ہیں. گزشتہ روز اس کا باقاعدہ افتتاح صوبائی وزیر بلدیات ناصر حسین شاہ نے کیا, اور اس کے ساتھ ساتھ جو یہاں پر 8ویں سندھ اسکاؤٹس کیمپوری کی تقریبات ہیں, ان میں کیا کیا ایکٹیویٹیز ہوں گی, اسکاؤٹنگ ہے کیا, یہ تمام چیزیں آپ کو بتائیں گے. اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں سندھ بوائے اسکاؤٹس ایسوسی ایشن کے صوبائی سیکرٹری سید اختر میر. ان کی جانب بڑھوں گا. سر, مجھے یہ بتائیے گا پہلے تو کہ اسکاؤٹنگ ہے کیا. بنیادی طور پر اسکاؤٹنگ کو اگر آپ انگلش میں لکھیں تو SCOUTING ہم اس کی اسپیلنگ لکھتے ہیں, اور اس میں سے ایس اور سی کو اگر آپ تھوڑا سا دور ہٹا دیں تو آؤٹنگ رہ جاتی ہے. بیسیکلی یہ آؤٹنگ ہے, لیکن SC مخفف ہے سائنس کا, تو یہ وہ آؤٹنگ ہے جو سائنٹیفک آؤٹنگ ہو. ہمارے پاس آؤٹنگ کے 2 طریقے ہیں. ایک کو ہم کیمپنگ کہتے ہیں, دوسرے کو ہائیکنگ. کیمپنگ میں بھی گھر سے باہر نکلنا پڑتا ہے. یہاں آپ دیکھ رہے ہیں کہ کیمپوں میں اسکاؤٹس آ کے ٹھہرے ہوئے ہیں, گھر اپنا چھوڑ کے آئے ہیں, گھر کا بستر چھوڑ کے آئے ہیں, اور یہاں آ کے بستر بھی اپنا خود بچھا رہے ہیں, اپنے ٹینٹ کی جھاڑو بھی لگا رہے ہیں, برتن بھی دھو رہے ہیں, کھانا بھی پکا رہے ہیں. یعنی وہ تمام کام جو گھر میں کبھی نہیں کرتے وہ اس کیمپنگ کے دوران کر رہے ہوتے ہیں, اس آؤٹنگ کے دوران. دوسرا ایک اور چیز ہے کہ ایک کیمپ کے اندر 8 بچے رہتے ہیں. 8 بچوں کو مل جل کر ساتھ کام کرنے کا موقع ملتا ہے, ایک دوسرے کو برداشت کرنے کا موقع ملتا ہے. پھر روزانہ لیڈر تبدیل ہوتے ہیں تو لیڈرشپ کی تربیت ان کو ملتی ہے. ساتھ ساتھ یہ کہ جب ہر کام اپنے ہاتھ سے کر رہے ہیں تو کام کرنے کا سلیقہ آتا ہے. یہ کیمپنگ جو ہے ان کو کانفیڈنس دیتی ہے, ان میں اعتماد پیدا کرتی ہے. ہمارے ہاں دوسرا طریقہ ہائیکنگ کا ہے کہ پیدل ایک جگہ سے دوسری جگہ سفر کرتے ہیں. جب ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتے ہیں تو نئی چیزیں, نئی جگہیں دیکھنے کا موقع ملتا ہے, اور ثقافت اور زبان سے آ گئی ہوتی ہے. اسکاؤٹنگ بنیادی طور پر 1907 میں بیڈن پاول نے شروع کی تھی, اور انہوں نے پہلا ایک کیمپ جزیرہ براؤن سی میں لگایا تھا, جس میں 20 اسکاؤٹ شریک ہوئے تھے. اور 1907 سے لے کر 1920 تک پوری دنیا میں اسکاؤٹنگ پھیل چکی تھی, لیکن یہ پہلے صرف عیسائی بچوں کے لیے تھی. 14 اگست 1947 کو جب پاکستان وجود میں آیا تھا, اس وقت اسکاؤٹس کی جمبوری ہو رہی تھی, اور پہلی 1920 میں ہوئی تھی. تو وہ 6ٹھی جمبوری فرانس میں ہو رہی تھی. اس میں متحدہ ہندوستان کا اسکاؤٹ دستہ شریک تھا, اور اس دستے کو یہ موقع ملا کہ 14 اگست وہاں منائیں. جب 14 اگست وہاں منانے کا پروگرام طے ہوا تو انہوں نے جمہوری ایڈمنسٹریشن سے کہا کہ 2 ملکوں کے پرچم لہرانے کی اجازت دی جائے. اجازت مل گئی. ہندوستان کے جو ہندو اسکاؤٹ تھے وہ پرچم ساتھ لائے تھے, لیکن پاکستان کے اسکاؤٹ کو, مسلمان اسکاؤٹوں کو اپنے پرچم کی بناوٹ کا علم نہیں تھا, کیونکہ ہمارا پرچم جو ہے وہ 11 دسمبر 1947 کو دستور ساز اسمبلی کے اندر منظور کیا گیا تھا. تو جب وہ پرچم منظور ہوا تو وہاں فرانس میں موجود اسکاؤٹس نے سبز پگڑی سے سبز کپڑا لے کر, سفید قمیض سے سفید کپڑا لے کر گرلز گائیڈ کی مدد سے پرچم تیار کیا اور 14 اگست کو لہرایا. تو اس طرح سے انہیں پاکستان کا پہلا سفیر بننے کا اعزاز حاصل ہوا, اور انہیں پاکستان کا پہلا سفیر کہا گیا. تو جب یہ اسکاؤٹ یہاں کراچی واپس آئے واپسی میں, تو 1 دسمبر کو ان تمام اسکاؤٹ لیڈرز کا اجلاس ہوا کہ جنہوں نے اسکاؤٹنگ کی تھی, تو انہوں نے مل کر پاکستان
बॉय स्काउट एसोसिएशन कायम की 29 दिसंबर 1947 को, जिसका चार्टर भी यहाँ हमने बच्चों को बताने के लिए लगाया। और 22 दिसंबर यानी आज के दिन कायदे आदम मोहम्मद अली जिन्ना ने पाकिस्तान के पहले चीफ स्काउट की हैसियत से गवर्नर जनरल हाउस में स्काउट वादा पढ़कर हल्फ उठाया था। तो आज हम पाकिस्तान स्काउट्स का दिन मना रहे हैं और यहाँ स्काउट्स की कैंपोरी की तकरीब में हमने उसको भी शामिल किया है। बहुत शुक्रिया सर। अब हम आपको लिए चलते हैं मेन एरिना में, जहाँ पर 8वीं सिंध स्काउट्स कैंपोरी की रंगारंग तकरीब जारी है। वहाँ पर जो मुख्तलिफ स्काउट लीडर्स और स्काउट्स अपनी एक्टिविटीज कर रहे हैं वो भी आपको दिखाते हैं। ये मैं सौदा नहीं करता, मुझे नुकसान है। बोलता कुरान सुनो, मुश्किल सा किसान सुनो, अली है बोलता कुरान सुनो। इस वक्त हम मौजूद हैं मैन एरिना में, सिंध बॉय स्काउट्स एसोसिएशन का ये ट्रेनिंग सेंटर, जहां पर 8वीं सिंध स्काउट्स कैंपोरी की तकरीब जारी है। कैमरामैन कैसर अब्बास अगर इस वक्त बाएं जानिब से दिखा सकें तो ये वो कैंप हैं जिनमें ये बच्चे रहते हैं। सिंध भर से तकरीबन 2000 से जायद तलबा यहाँ पर मौजूद है। इनका ताल्लुक मुख्तलिफ स्कूलों से है, इसके अलावा कॉलेजेस से ताल्लुक है, इसके अलावा यूनिवर्सिटी से कुछ बच्चों का ताल्लुक है जो कि यहाँ पर मौजूद हैं, जो कि रोवर स्काउट्स कहलाते हैं। इन कैंप्स में ये रहते हैं, यहीं वो तमाम काम जो उन्होंने घर में नहीं किया होता यहाँ पर कैंप्स में किया जाता है। और इसके साथ साथ जो गैजेट्स बनाए जाते हैं, उन गैजेट्स में वो रोजाना का जो इस्तेमाल का सामान होता है उनको रखना, सलीके से रखना, सुबह वक्त से उठना, उठकर वर्जिश करना, उसके बाद असम्बली के बाद फिर एक पूरे दिन का एक शेड्यूल है जो यहाँ पर जारी रहता है। 21 से 26 दिसंबर तक इसी तरह एक्टिविटीज जारी रहेंगी। कुछ यहाँ पर एरिना में एक्टिविटीज की जाएंगी, कुछ एक्टिविटीज बाहर हैं जिनमें समंदर की सैर है, अमन का पैगाम है, ट्रैफिक कंट्रोल है और इस तरह की तमाम जो सरगर्मियां हैं वो शामिल हैं। इस वक्त मैं आपको दाएं जानिब की सूरत हाल भी दिखाऊंगा, लेकिन इससे पहले लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। वेलकम बैक। कैंप के अंदर की क्या सूरत हाल है, स्काउट्स क्या कर रहे हैं और इनकी आज की एक्टिविटीज क्या हैं, ये आपको दिखाते हैं। ये डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल बॉय स्काउट्स एसोसिएशन का एक कैंप है और इस कैंप का ताल्लुक कराची से है, जिला कराची वस्ती से। इस वक्त मैं कैंप में आ चुका हूँ और यहाँ देखा जा सकता है, कैमरामैन कैसर अब्बास अगर दिखाएं तो 3 स्काउट्स यहाँ बैठे हैं और ये कोशिश कर रहे हैं जमीन पर एक बैच बना रहे हैं, एक बहुत ही खूबसूरत अंदाज में। यही तमाम चीजें जो स्काउटिंग में सिखाई जाती हैं कि अपना काम खुद अपने हाथ से किस तरह किया जाता है। और इसके अलावा मेरे पस मंजर में भी स्काउट्स को देखा जा सकता है, वो मुख्तलिफ एक्टिविटीज कर रहे हैं। इनकी जानिब में मैं चलूंगा कि स्काउट्स किस तरह की एक्टिविटीज कर रहे हैं और क्या क्या काम करते हैं। एक स्काउट मेरे साथ मेरे हमरा मौजूद है। मुझे बताइएगा कि यहाँ पर 8वीं सिंध स्काउट्स कैंपोरी में कौन कौन सी एक्टिविटीज कर रहे हैं, कैसा लग रहा है स्काउट्स वर्दी पहन के? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम यहाँ पे, आपको मालूम है 2004 में पिछली बार 7वीं कैंपोरी हुई थी, तो बहुत अरसे के बाद कैंपोरी लगी है। हम बीच में आते रहते हैं, लेकिन इस तरह की कैंपोरी पहली बार लगी है। तो पूरे जिले से इस बार आए हैं, पहली मरतबा ये। और दूसरी ये कि हमें ना सुबह से लगे हुए हैं। कल तो फिलहाल हमारी ओपनिंग सेरेमनी थी तो इतना कुछ नहीं है। आज सुबह से हम स्पोर्ट्स हुई है, स्पोर्ट्स के बाद अब कैंपिंग की तैयारी हो रही है हमारी। अभी हम कैंपिंग करेंगे, कैंपिंग की तैयारी हो रही है। देखें हम यहाँ पे कैंप की तैयारी कर रहे हैं अभी। इसके साथ मैं देखा हूँ पस मंजर में ये स्काउट्स कैंप लगा रहे हैं, टेंट लगा। क्या तरीका होता है टेंट लगाने का? इसका बाकायदा कंपटीशन भी होता है जो टेंट पिचिंग कहलाता है, लेकिन कैंप लगाने के लिए कौन सी मखसूस डोर है, कौन सी मखसूस रस्सियां हैं और कौन कौन से जो गिराहें यहाँ पर बांधी जाती है, इस वक्त ये स्काउट्स ये बाकायदा हमें अमली तौर पर करके दिखा रहे हैं। तो इस कैंप को ये स्काउट्स खुद लगाते और खुद ही तमाम एक्टिविटीज करते हैं। एक और स्काउट मेरे साथ मौजूद है। आप ये बताइएगा कि यहाँ पर टेंट पिचिंग का मुकाबला कर रहे हैं, आपको यहाँ क्या क्या सिखाया जाता है और एक्टिविटीज करके कैसा लगता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। यहाँ पे अभी हम उससे पहले भी बहुत सारे मुकाबले हुए, उसमें भी बच्चों ने नमाज जीते। और अभी हमारा मुकाबला है कैंप पिचिंग का, तो हमें भी प्रैक्टिस के लिए कैंप दिया है। हमारा ही कैंप हमें दोबारा खोलना है और हमारा ही कैंप हमें दोबारा भी लगाना है।
तो कौन सबसे पहले खोलता है और कौन सबसे पहले दोबारा लगाता है। इसमें जो यहाँ पे जीतेगा फिर वो वहाँ पे आगे परफॉर्मेंस करेगा। अगर वहाँ पे भी जीतते हैं तो हमें आगे अपना इनामात दिए जाएंगे। उसके बाद हमें बाकी चीज़ों में हमें जिम्नास्टिक्स सिखाई जाती है, हमें जिम्नास्टिक्स वगैरह उसमें हमें अलग अलग तरीके की नोट्स वगैरह भी सिखाई जाती है कि कौन सी नोट्स कहाँ पे लगानी है। और सबसे बड़ी बात कि स्काउट्स की नोट्स बनाई जाती है, बांधी नहीं जाती। वेरी गुड। ये स्काउट हैं जो बता रहे हैं कि इनका तरीकाकार क्या है, ये किस तरह काम कर रहे होते हैं। और इसके अलावा ये मैं आपको दिखाऊं, ये जो गैजेट्स, इन्हें गैजेट्स कहा जाता है। और यहाँ पर स्काउट्स ने बर्तन रखे हुए हैं और ये सिखाया जाता है कि कोई भी चीज जमीन पर, स्काउट्स कोई भी चीज जमीन पर नहीं रखता। तो तमाम चीजें जो स्काउट्स अपने हाथ से बनाते हैं। और एक और चीज मैं इसमें बताऊं, ये जो लैशिंग्स बांधी हुई, ये बाकायदा ये कोई आम गिराएं नहीं होती, ये बाकायदा इनको सिखाई जाती है कि कौन सी लैशिंग कहाँ बांधनी होती है और कौन सी लैशिंग का, कौन सी गिरा का इस्तेमाल कहाँ पर किया जाता है। इसके अलावा हमारे साथ कराची सेंट्रल से डिस्ट्रिक्ट स्काउट सेक्रेटरी मिस बुशरा एहसान हमारे हमरा मौजूद है, जिन्होंने इसको खूबसूरत तरीके से ऑर्गेनाइज किया है, इसको सजाया है और बाकायदा एक स्काउट लीडर है। इनकी जानिब में बढ़ूंगा। मुझे ये बताइएगा कि यहाँ पर बच्चे मुख्तलिफ एक्टिविटीज कर रहे हैं, तो एक तो जाहिर है कि हम निसाबी सरगर्मी भी है, तो इसमें कौन कौन सी सर्विस आपकी यहाँ पर कैंपुरी में शामिल है और ये बच्चे किन किन प्रोग्राम में मजीद हिस्सा लेंगे? अस्सलाम वालेकुम। जिस तरह से हम लोग देख रहे हैं और आप भी सुबह से देख रहे हैं कि यहाँ सुबह से बच्चे जो है मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ में, पहले गेम्स वगैरह में मुलव्विस में सब लोग शामिल थे। और अब जो है हमारे सारे बच्चे जो है, हमारे जो आप कह रहे हैं ना कि कौन कौन सी सर्विसेज हैं, हमारे यहाँ पे हेल्थ सर्विसेज, मेडिकल कैंप वगैरह सब लगे हुए। खुदा ना खासा कोई मसाइल हो तो बच्चों को वहाँ पे फौरी तौर पर हल किया जाए। इसके अलावा हमने यहाँ बच्चों के साथ लाइव कुकिंग भी करे ताकि बच्चे जो है कुकिंग भी कर सके और फिर उनके तमाम जितने भी खाने के मसाइल, सुबह का नाश्ता है, दोपहर का खाना है, रात का खाना है, ये बच्चे खुद पका रहे हैं और खुद खा रहे हैं। किस तरह की हमारी जो बेसिक जो हमारी ट्रेनिंग है स्काउटिंग की, उसको ये मुकम्मल तौर पर फुलफिल कर रहे हैं। हम कोशिश कर रहे हैं कि बच्चे इस नेचुरल हालात में किस तरह से जीते हैं, किस तरह हमारा एक स्काउट अपने तमाम मसाइल से हल हो सकता है। अगर उसको किसी मुश्किलात का शिकार हो तो वो तमाम इस ट्रेनिंग को कैंपेन दी जा रही है। और जैसे कि आपको पता है कि इसमें ना सिर्फ के जिला ना सिर्फ कराची रीजन के बल्कि सिंध के तमाम अजला से मुख्तलिफ स्काउट्स आए हुए हैं और यहाँ पे 2000 स्काउट्स का मेला सजा हुआ है। ना सिर्फ ये बल्कि सरहद के भी स्काउट्स हमारे पास मौजूद हैं। हम भी बहुत खुश हुए इनको देख के कि वो हमारे साथ मौजूद है। इस मुकाबले की फिजा जो है ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ रही है। बच्चे चाह रहे हैं कि वो किसी भी मुझसे ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करके दिखाएं। आप देखेंगे यहाँ पे छोटे छोटे बच्चे जो हैं, चाहे वो 11 साल के हों, चाहे वो 17 साल के हों, चाहे 15 साल के हों, सब अपने कामों में लगे हुए हैं। बहुत शुक्रिया मैडम बुशरा एहसान हमारे हमरा मौजूद थी। ये कैंप आपने देखा, कैंप की एक्टिविटीज आपने देखी, इसके साथ साथ मैं आपको लिए चलूंगा। हमारे हमरा मुख्तलिफ ऑफिशियल्स और मुख्तलिफ लोग भी मौजूद हैं, मुख्तलिफ स्काउट लीडर्स भी मौजूद हैं, लेकिन इस वक्त हमारे हमरा मौजूद है इस कैंपुरी के डायरेक्टर हैं और लीडर ट्रेनर हैं, सिंध बॉय स्काउट्स एसोसिएशन से ताल्लुक है, तारिक अली साहब। सर ये बताइएगा कि 8वीं सिंध स्काउट्स कैंपुरी में कितने स्काउट्स शरीक हैं, कैंपुरी के मकासद क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हमारी 8वीं सिंध स्काउट कैंपुरी है। अल्हम्दुलिल्लाह ये तकरीबन 17 साल के बाद इसका इनेकाद हो रहा है और इस वक्त हमारे पूरे सिंध के 29 अजला से तकरीबन 1400 हमारे स्काउट शामिल है। और न सिर्फ सिंध के स्काउट्स हैं बल्कि PIA और हमारे इस्लामाबाद बॉय स्काउट और KP के भी स्काउट्स हमारे यहाँ पे इस वक्त दरमियान है। इसमें हमारा बुनियादी मकसद, जैसे हमारे स्काउट्स का बुनियादी उनको माशरती तौर पे हमारा कारामत शहरी बनाना मेन हमारा ऑब्जेक्ट होता है, जो अल्लाह ताला हमें इस बात की तौफीक दे रहा है कि हम इसको बेहतर अंदाज से इन बच्चों के अंदर वो तरबियती स्किल्स पैदा करें कि हमारे माशरे में कारामत शहरी बन सके। यही हमारा मेन ऑब्जेक्ट है और इंशाल्लाह ये हमारे बच्चे यहाँ मौजूद हैं और सुबह से मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ हो रही हैं। सुबह से ये बच्चे हमारे ग्लोबल विलेज है वहाँ पे गए, फिर उसके बाद हमारे बच्चों ने सी साइड का विजिट भी किया, फिर हमारे वॉक भी की, ट्रैफिक अवेयरनेस का प्रोग्राम भी किया, स्पोर्ट्स एक्टिविटी भी की। और इस वक्त आज 22 दिसंबर का दिन है और 22 दिसंबर हमारे पाकिस्तान डे है, स्काउट डे है, जो पूरे पाकिस्तान में सेलिब्रेट किया जा रहा है। और इस वक्त हमारे इस कैंप के अंदर जो हमारी 8वीं सिंध स्काउट कैंपुरी हो रही है, इसमें 22 दिसंबर को सेलिब्रेट करने का इस वक्त सेशन जारी हो सारी है और उम्मीद है कि इस सेशन को हम कामयाब बनाएंगे। बहुत शुक्रिया सर। सिंध बॉय स्काउट्स एसोसिएशन की 8वीं सिंध स्काउट्स कैंपुरी जो कि 17 साल बाद मुनाकिद हो रही है,
आपको हमने बताया इसमें कौन कौन सी एक्टिविटीज हैं, कहाँ कहाँ से स्काउट्स आ रहे हैं। इसके अलावा कुछ मजीद एक्टिविटीज हैं जिनमें रेस्क्यू सर्विसेज भी हैं और दीगर काम भी हैं और कुछ ऐसे काम भी हैं जो कि स्काउट्स ने बाहर जाके करने हैं, आउटडोर एक्टिविटीज हैं, वो भी हम आपको बताएंगे। लेकिन यहाँ लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। वेलकम बैक। स्काउट्स की बात हो रही थी, 8वीं सिंध स्काउट्स कैंपुरी की, और इस वक्त मैं आपको बताऊंगा कि स्काउट्स न सिर्फ मुख्तलिफ सरगर्मियां करते हैं जिसमें सीखने सिखाने का अमल, मुख्तलिफ कोर्सेज, मुख्तलिफ बैजेस, आलमी मायार के बैजेस, और उसके साथ साथ रेस्क्यू के हवाले से भी स्काउट्स को ट्रेनिंग दी जाती है। बाकायदा तौर पर इब्तिदाई तिब्बी इमदाद के हवाले से खुदा न खास्ता कोई बड़ा हादसा हो जाए, कोई बड़ा शहर में डिजास्टर हो जाए या फिर कोई ट्रैफिक हादसा हो, कहीं आग लग जाए, कहीं बिल्डिंग गिर जाए, तो वहाँ पर स्काउट्स खिदमत करते रहे हैं और खिदमत करते हुए भी नजर आते हैं और बाकायदा वर्दी में जो है वो रेस्क्यू का अमल भी जारी रखते हैं। इस वक्त सिंध बॉय स्काउट्स एसोसिएशन के रेस्क्यू कमिश्नर हैं ताहिर शेख साहब, जो कि कराची में हो या कराची से बाहर कोई खुदा न खास्ता कोई बड़ा वाकया हो तो वहाँ पर रेस्क्यू की स्काउट्स की टीम मौजूद होती है जिनकी सरपरस्ती ताहिर शेख साहब करते हैं। ताहिर शेख साहब की जानिब में बढ़ूंगा। ताहिर साहब मुझे बताइएगा, 8वीं सिंध स्काउट्स कैंपुरी में आपका रेस्क्यू कैंप भी कायम है, स्काउट्स को कौन कौन सी रेस्क्यू की सरगर्मियां, इब्तिदाई तिब्बी इमदाद के काम आप सिखाते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आपको बताया कि सिंध बॉय स्काउट की जानिब से एक रेस्क्यू टीम है मौजूद, और जहाँ भी हादसा हो जाता है, बम ब्लास्ट होता है, फ्लड हो जाता है या कोई भी जल्जल आ जाता है, तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी सिंध बॉय स्काउट टीम फौरी तौर पर इमरजेंसी रिस्पॉन्स करती है और पहुंचती है। अच्छा, हमने जो आज ये रेस्क्यू का जो हमने कैंप लगाया है और इसमें हमारे सिंध बॉय स्काउट की जो 8वीं कैंपुरी है उसमें 1500 स्काउट हमारे शामिल है। अच्छा, हम इनको अवेयरनेस देने जाते हैं कि अल्लाह ना करे इमरजेंसी रिस्पॉन्स, कि अल्लाह ना करे कि जब आपके घर में आग लग जाती है, घर में अगर कोई ना हो, कोई आपको, तो फौरी तौर पर आग लग जाती है, किस तरीके से वो काबू पाया जाता है। अगर कोई जख्मी हो जाता है तो उसको किस तरीके से, और कहीं जल्जल आ जाता है तो उसको हम किस तरीके से। तो हमारी सिंध बॉय स्काउट की में 6 बेजेस हैं। रेस्क्यू का हमारा बेच खिलाता है इमरजेंसी रिस्पांस का, तो उसमें हम छोटी मोटी चीजें बताते हैं कि फर्स्ट एड किस तरह करना है, खून निकल रहा है, कोई जख्मी रहता है, किस तरीके से उसको डूब रहा है, उसको किस तरीके से उसको बोलाइन के जरिए हम बचाते हैं। अगर आग लग जाती है तो किस तरीके से हम उसको, छत के ऊपर बिल्डिंग गिर जाती है, ऊपर हम किस तरीके से उसको, हम बाकायदा हमारे पास रोप मौजूद है, हमारे पास ये सेफ्टी बेल्ट मौजूद है, किस तरीके से हम उसको लेके आएंगे। अब बहुत शुक्रिया ताहिर शेख साहब। और इसके साथ साथ कैसरा पास अगर दिखा सकें तो स्काउट्स इस वक्त ये बता रहे हैं एक केस, खुदा न खास्ता हड्डी टूट जाए या सर पर चोट आ जाए तो उसको किस तरह बचाया जाता है। स्काउट लीडर्स भी मौजूद हैं, स्काउट्स भी मौजूद हैं। अगर आपके पास कोई सामान ना हो तो जो स्कार्फ स्काउट्स पहनते हैं उस स्कार्फ के जरिए किस तरह स्काउट्स को बचाया जाता है ये आपको बताया जा रहा है। तो ये अमली मुजाहरा इस वक्त करके दिखा रहे हैं। एक तरबियत के तौर पर स्काउट्स को सिखाया जा रहा है कि स्काउट के किसी भी शख्स के सर में अगर चोट लग जाए या बाजू टूट जाए तो उसको किस तरह रेस्क्यू करना है, स्कार्फ से किस तरह उसको बचाना है। बिल्कुल आपने देखा कि स्काउट्स किस तरह अमली मुजाहरा करके दिखा रहे हैं कि किसी को अगर हाथ पर, बाजू पर चोट लग जाए या फिर हड्डी टूट जाए तो स्कार्फ की मदद से उसको किस तरह बचाया जाता है, और खुदा न खास्ता सर पर चोट लग जाए तो उसको किस तरह बचाया जाएगा। इसके अलावा जो रेस्क्यू की मुख्तलिफ सरगर्मियां हैं वो भी यहाँ पर जारी हैं और इसका अमली मुजाहरा बाकायदा उस वक्त देखने में जाता है जब खुदा न खास्ता शहर में कोई डिजास्टर हो जाए या किसी किस्म की कोई इमारत गिर जाए, कहीं आग लग जाए, कहीं बिल्डिंग गिर जाए, तो ये स्काउट्स की टीमें वहाँ पर मौजूद होती हैं। इस वक्त डायरेक्टर इस तमाम जो सरगर्मियाँ उनको बतौर डायरेक्टर भी देख रहे हैं खुर्शीद जाफरी साहब, और डिस्ट्रिक्ट वेस्ट बॉय स्काउट्स एसोसिएशन के सेक्रेटरी हैं हमारे हमरा मौजूद हैं। खुर्शीद जाफरी साहब, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि इब्तिदाई तिब्बी इमदाद के साथ साथ कौन सी सरगर्मियाँ हैं जो स्काउट्स कर रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया कामरान। हम 12 जो स्काउट्स हैं यहाँ पे इब्तिदाई तिब्बी इमदाद और रेस्क्यू तो कर रहे हैं, इसके अलावा हम यहाँ पे एक अवेयरनेस की वॉक कर रहे हैं। रोज़ डेली यहाँ से एक सब कैंप बाहर जाता है और लोगों को स्पोर्ट्स, अपना ट्रैफिक के हवाले से, माहौल के हवाले से आगाही प्रोग्राम करते हैं। इसके अलावा हमारा यहाँ से एक सब कैंप जो है साहिल समंदर पे पहुँच जाता है और साहिल समंदर के पर वो जो है वो साहिल समंदर की सफाई, खासतौर पर प्लास्टिक की जो चीज़ें वहाँ यूज़ हो रही हैं उनकी सफाई का एहतमाम करते हैं और वहाँ से होते हुए मुख्तलिफ जगहों पे बच्चे लोग रास्ते में लोगों को
आगाही देते आते हैं। यहाँ जो हमारे पास 2 सब कैंप मजीद हैं वो यहाँ पे एडवेंचर ट्रेल की एक्टिविटी कर रहे हैं, स्पोर्ट्स कर रहे हैं और इस तरह से जो अदबी सरगर्मियाँ हैं, मुशायरे हैं, ये सारा इस प्रोग्राम का हिस्सा है जो इंशाल्लाह 26 दिसंबर तक जारी रहेगा। बिल्कुल ठीक। अब मैं आपको इस कैंप के अंदर लिए चलूंगा कि इस कैंप में स्काउट से भी बात करेंगे, इस कैंप में उन्हें क्या क्या सिखाया जा रहा है। तकरीबन जो आलात हैं, जो रेस्क्यू में काम आने वाले आलात हैं, वो यहाँ पर मौजूद हैं। स्काउट लीडर्स भी यहाँ पर मौजूद हैं। स्काउट हमजा मुबीन ये भी बड़े एक्टिव नजर आते हैं, बहुत सारी रेस्क्यू की खिदमत करते रहते हैं। इनसे भी, इनकी जानिब चलूंगा, इनसे भी बात करूंगा। हमजा, आप मुझे ये बताइएगा कि रेस्क्यू के अमल में वो कौन कौन सा काम है जो स्काउट्स अंजाम दे रहे हैं? देखिए, बेसिकली अभी जो क्लीन एंड ग्रीन कैंप पूरी बनी है उसका मैं रेस्क्यू स्पेशलिस्ट इंस्ट्रक्टर हूँ और मैं टीचिंग प्रोवाइड कर रहा हूँ। यहाँ पे जो बच्चे कैंप में आ रहे हैं उनको हम बेसिकली ये बता रहे हैं क्योंकि इनका ताल्लुक स्काउट सेक्शन से और छोटी उम्र के बच्चे हैं, तो हम इन्हें बेसिकली ये बता रहे हैं कि अगर कोई भी हादसा हो जाता है तो उस हादसे के फौरी बाद, ख्वाह वो घर में हो या कमरे में हो या घर में हो या बाहर हो या मोहल्ले में हो, तो वो किस तरीके से बाहैसियत स्काउट्स जो हैं वो किस तरीके से अपनी जिंदगी को महफूज करते हुए, अपने आप की सेफ्टी करते हुए दूसरे को रेस्क्यू कर सकते हैं और उसको, इंसान की जिंदगी को बचा सकते हैं और कोई बड़े हादसे से महफूज रखने के लिए उनको टूल्स का, रेस्क्यू टूल्स का जो है वो बेसिकली हम अवेयरनेस दे रहे हैं कि किस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं, कैसे अपनी सेफ्टी कर सकते हैं और दूसरों की सेफ्टी कर सकते हैं। जी बहुत शुक्रिया। हमजा हमारे साथ मौजूद थे और स्काउट से मुतालिक बता रहे थे। मंजर अब्बास स्काउट लीडर है, यहाँ पर मौजूद है और ये बता रहे थे, बच्चों को सिखा भी रहे हैं और साथ साथ प्रैक्टिकली भी ये मुख्तलिफ काम कर रहे होते हैं। सर, मैं रेस्क्यू ट्रेनर हूँ सिंध बॉय स्काउट एसोसिएशन का। मेरा काम ही रेस्क्यू का है और एडवेंचर जो है वो मेरे हिस्से में आती है। जो आप देख रहे होंगे एडवेंचर भी आपने देखी होगी। एक्चुअली वजह यह है कि हम जो बच्चों को सिखाते हैं, जैसे रस्सी है, रस्सी से जो नॉट हम करते हैं वो जान बचाने के लिए जो है वो काम आती है, तो उसके लिए नॉट्स हैं हमारे पास। इसके अलावा हम बच्चे को पेशेंस की ट्रेनिंग देते हैं ताकि कोई हादसा हो, बड़ा हादसा हो, जैसे जहाज का हादसा हुआ था, तो हमारे बच्चे पलट के वापस ना आए बल्कि रेस्क्यू करें। पेशेंस इतने अच्छे होने चाहिए उनके। और हम जो यहाँ ट्रेनिंग करवा रहे हैं तकरीबन 1450 बच्चों को, वो उनके घरों तक भी जाएगी। रेस्क्यू की वो ट्रेनिंग है, जैसे आपकी माँ बहन या कोई हादसा बावर्ची खाने में पेश आ जाता है तो हम इनको टिप देते हैं कि खुदारा जब आप घर जाएं तो ये सारी चीजें देखें और रात में सोते वक्त गैस का चूल्हा बंद करना जो है ना भूलें, क्योंकि मेहमान आते हैं, खवातीन मसरूफ होती हैं, वो खुशी के अंदर या गमी के अंदर भूल जाती हैं, जिसकी वजह से बहुत सारे नुकसानात हुए। और इस असना में हमारे एक स्काउट हैं, उनके भी जो है ना घर पे इसी तरह धमाका हुआ था और तकरीबन 2 भाई उनके शहीद हो गए थे। तो मैं अपने तहफ़्फ़ुज़ से यही कहना चाहता हूँ कि एक आपका साथी सिलेंडर है, गैस, ये जो आपका फायर एक्सटिंग्विशर है, ये आपका दोस्त है, इसको घर में जरूर रखिए और 3-3 महीने बाद मेंटेनेंस करते रहें। और एक अपनी जो खवातीन हैं उनको रेस्क्यू की ट्रेनिंग दें ताकि आग वगैरह लग जाए चूल्हे में या कुछ करे तो वो खुद तमाम चीजों को हैंडल कर सके और एक अच्छा मुआशरी और पाकिस्तानी बन सके। बहुत जबरदस्त। तो इससे अंदाजा हुआ कि स्काउट्स बहुत सारी ऐसी सरगर्मियां भी सीखते हैं जो जान बचाने के काम आने वाली सरगर्मियां हैं। इसके साथ साथ स्काउट्स को वो चीजें भी सिखाई जाती हैं कि अगर खुदा न खास्ता कोई डूब रहा हो तो डूबते हुए शख्स को किस तरह बचाया जाता है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं मिस शाहिदा जबी हमारे हमरा मौजूद है, जो खवातीन का स्काउट्स में क्या किरदार रहता है और किस तरह की सरगर्मियां खवातीन करती हैं और गर्ल्स स्काउट्स को किस तरह यहाँ पर सिखाया जाता है। आपकी जानिब आऊँगा, आप बताइएगा खवातीन का क्या किरदार होता है, गर्ल्स स्काउट्स को किस तरह सरगर्मियां कराई जाती है? देखिए, गर्ल्स स्काउट जो है वो ज्यादा जरूरी है क्योंकि जो कुछ हम लोग यहाँ पे सिखाते हैं ना तो लेडीज को ज्यादा इसकी जरूरत पड़ती है। आग का मसला है, चोट का मसला है या पुरानी चीजों को नया करना है। अक्सर लोग कहते हैं फेंक दो ये, मगर ये सब लड़कियां सलीका सीख के जाती है। बड़ों का अदब करना, छोटों से शफकत से पेश आना, तो ये बच्चियों को हम सिखाते हैं कि आपने किस तरह अपने चीजों को संभालना है। कोई चीज आप है ना फेंके नहीं, अपने कपड़े इधर उधर ना फेंके, घर को सलीके से। तो कैंप में रह के बच्चे है ना सफाई करना, अपनी चीजें संभालना, अपना काम खुद करना। वरना बच्चियां स्कूल से घर जाती हैं, कपड़े यहाँ फेंके, जूते, अम्मी पानी पिलाना, तो ये वो खुद काम करना सीखती है। और फिर पुरानी चीजों को वो सोचती है हमें से किस तरह इस्तेमाल करें, हम किस तरह इस्तेमाल करें, उनको आ जाता है। ये हम सलीका, किफायत शारी सब सिखाते हैं हम।
सलीका भी सिखाते हैं, किफायतशारी भी सिखाते हैं, अदब अदाब, छोटे बड़ों से हमदर्दी, मोहल्ले पड़ोस के कोई मसले हैं, आप जो भी हो सके वो करें। तो लेडीज के लिए मेरे ख्याल में ज्यादा जरूरत है, क्योंकि एक लेडीज अगर सीखती है तो वो अपनी बच्चों को भी सिखाएगी, अपनी फैमिली को भी सिखाएगी। मर्द से ज्यादा मैं समझती हूँ लेडीज को बहुत जरूर आना चाहिए स्काउटिंग में। बहुत शुक्रिया मिस शाहिदा जबी हमारे हमरा मौजूद थी और ख़वातीन की गर्ल्स स्काउट्स के ख़ास तौर पर उनकी खिदमत के हवाले से और उनको किस तरह उनको एक्टिविटीज़ कराई जाती हैं और उनके लिए कितनी ज़रूरी है ये एक्टिविटीज़, ये तमाम उन्हें बता रही थी। इसके साथ साथ हमने 8वीं सिंध स्काउट्स कैंपुरी के हवाले से आपको बताया और बिलखुसूस ये जो सिंध बॉय स्काउट ट्रेनिंग सेंटर है यहाँ पर सिर्फ यही नहीं कि कैंपुरी के हवाले से बल्कि मुख्तलिफ तकरीब यहाँ पर जारी रहती हैं, मुख्तलिफ किस्म के प्रोग्राम्स यहाँ पर जारी रहते हैं। मोहम्मद समी साहब मौजूद हैं, अल अरबिया स्काउट से इनका ताल्लुक है। इनसे हम ये जानना चाहेंगे, मुझे बताइएगा कि स्काउट्स इन सरगर्मियों के अलावा जो जलसे जुलूस होते हैं उसमें भी आपकी काफ़ी खिदमत रहती हैं और आप लोग वहाँ पर काम कर रहे होते हैं, काम करते रहते हैं। तो ये बताइएगा कि स्काउट्स का वहाँ पर क्या काम होता है, क्या खिदमत बाहर देते हैं? जब हम जुलूस लेके चलते हैं, रबी लेवल जुलूस करते हैं, हम वो अहाता बनाते हैं, अहाता बनाया जाए ताकि सेफ्टी रहे, लोग तरतीब में चले। मुहर्रम के जुलूस में आपने देखा होगा कि लोग आते हैं तरतीब, और तमाम पुलिस वाले दूसरे लोग स्काउट पर ज़्यादा एतमाद करते हैं। कहीं रश लगा होगा, स्काउट ने कह दिया आप इधर से जाएं, इधर जाए, आपने वो कराना है, चेकिंग करानी, तो उसको मना नहीं करते, वो कहेंगे लाई कराइए। छोटा बच्चा हो या बड़ा बच्चा हो, कोई भी आदमी जो है वो करवाना चाहे तो आराम से करके चेक हो गया था, और फिर उसका वो हर आदमी बड़ी मोहब्बत और खुद के रहा स्काउट से यार ये मैं काम करूँ, वो करते नहीं है। और उस जुलूस को हम बाकायदा यहाँ से लेके मंजिल के मुकाम तक पहुँचा देते हैं। 8वीं सिंध स्काउट्स कैंपुरी, अबुल हसन अस्फानी रोड, गुलशन इकबाल से कामरान शेख को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।